Hello and very good morning to all of my lovely kids. How are you all? I hope you all are fit and fine at home. So, today is a new day and today is our English period. So, let's start our English period today. Today we will start chapter number 12, Whale in the Sky. Whale in the Sky. Today we will start this chapter. I will explain you this chapter. Okay? Before starting the chapter, I will just tell you the summary of this lesson. Basically, this is a story written by Siddharth Chakravarti. It's a story written by Siddharth Chakravarti. It's about a little girl, Munja, and her Dadu, who loved each other's company and enjoyed watching clouds. One day, while watching clouds, they spot clouds in various shapes like a ostrich, a concerned moon, and even a cauliflower. Then Dadu tells Munja that one of them reminded him of a blue whale. Dadu tells Munja that it is the biggest animal to have ever lived on earth, and that is even bigger than a dinosaur. It is so big that Munja can comfortably sit inside its heart. Daddu also tells Munja that whale is not a fish and hence it does not have gills like fish, which helps it breathe underwater. Whales have huge nose on their backs which helps them breathe at the surface of the water. We can know that a whale is breathing when it sees fountain of a water going up in the air at sea. So student, this is the just a summary of the lesson. Let's start our lesson number 12. Okay children, look at the board. Lesson number 12, Whale in the Sky. Whale in the Sky. Before starting explaining you the chapter, there is one activity is over there. We will just complete. This is your homework. Okay? List the shapes you see. Then say one word describing each one. You can see lots of shapes are given over there. Okay? आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे shapes दिए हुए हैं. आपको identify करना है कि वो particular किसका shape है और उसको describe करने के लिए एक one word या तो बोलना है या तो आप यहाँ पे दिए हुए blanks में लिख सकते हैं. जैसे suppose elephant. तो एलिफेंट सोचते ही फर्स्ट वर्ड आपके दिमाग में क्या आता है? दैट एलिफेंट इज अ वेरी ह्यूज एनिमल. ह्यूज हो गया, बिग हो गया. तो आपको एलिफेंट लिखना है और उससे रिलेटेड कोई वर्ड जो आपके दिमाग में सबसे पहले जो उसको पर्टिकुलरली डिस्क्राइब कर सके ऐसा एक वर्ड आपको लिखना है. अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं अलग अलग एनिमल्स के. यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट एनिमल, write it down their name and the describing part of that particular animal. Okay children, this is your homework. Now take out page number 105 in your voice textbook. So students, basically this is a story about a little girl Muzna and her Dadu. Okay, take out page number 105. Dadu and Munza love watching the clouds. Dadu and the little girl whose name is Muzna. Whose name is Muzna. Muzna and her Dadu are enjoying to watching the clouds.
They are happy and they are enjoying to watching the clouds. Did you know that your name comes from the cloud? Dadu tells her granddaughter Munza that do you know that your name comes from a cloud? ये एक स्टोरी है एक दादाजी की और उनकी पोती जिसका नाम क्या था? मुजना। मुजना मुजना और उसके दादाजी की ये स्टोरी है जिसमें उन दोनों का बॉन्डिंग दिखाया गया है कि दादा और पोती का बॉन्डिंग किस तरह का है। तो एक दिन दोनों बैठ के क्या देख रहे थे? दे आर वॉचिंग द क्लाउड्स। क्लाउड्स मतलब आसमान में जो बादल होते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाउड्स। तो दे आर वॉचिंग टू सी द क्लाउड्स एंड दादू से बोलते हैं कि डिड यू नो दैट योर नेम कम्स फ्रॉम द क्लाउड। वो अपनी पोती को बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो नाम है वो क्लाउड के ऊपर से ही लिया गया है। मुजना means the cloud that carries the rain, says दादू। दादू क्या बोलते हैं? जो तुम्हारा नाम है, क्या नाम था उसका? मुजना। आपको पता है कि आपका नाम जो है वो एक क्लाउड के ऊपर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है क्लाउड दैट कैरीज द रेन। ऐसे बादल जिसमें बारिश भरी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? मुजना। ऐसा बोलते हैं उसके दादू। There are so many shapes in the clouds. उसके दादू क्या बोलते हैं? There are so many shapes of the cloud. जैसे a cauliflower, जब हम आसमान में देखते हैं तो बादल कभी कभी उन्हें कैसे लगते हैं? एक कॉलीफ्लावर की जैसे, गोभी का फूल होता है ना, उसकी तरह कॉलीफ्लावर। और मॉस्ट्रिच, मॉस्ट्रिच मतलब मूंछ, मूंछ के शेप में भी उन्होंने कई बार उन बादलों को देखा है। क्रिसेंट मून मतलब आधा चंद्रमा। आधा मून जब जिस शेप का होता है उस शेप में भी बहुत सारी बार उन बादलों को देखा गया है। मुजना spots a dog shapes one. It has such a billowing nose. पर मुजना को जो डॉग शेप के क्लाउड बनते थे वो बहुत ही पसंद थे। क्यों पसंद थे? क्योंकि उनमें उस डॉग का जो बिलिंग नोज था उसे वो बहुत अच्छा लगता था। ओके, टर्न द पेज। पेज 106। See the cloud there. I know of an animal that looks just like it. उसके दादू उसको आसमान की तरफ इशारा करके बोलते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। Look at that cloud. उसकी तरफ, आसमान की तरफ इशारा करते हुए उसके दादू से बोलते हैं कि उस बादल को देखो। Says दादू। Really? Asked मुजना excitedly। मुजना जो है, मुजना को बोलते हैं कि वो उस आसमान में उस बादल की ओर देखो। तो जो मुजना है वो एक्साइटली उस बादल की ओर देखने लगती है। It's called a whale and it lives in the ocean। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये किस चीज का पिक्चर बन रहा है? This is a picture of whale। तो वो क्या बोलते हैं कि ये एक whale है। whale जो कहाँ रहती है? ओशंस में। ओशंस मतलब सागर में। ओशंस मतलब सागर। Tell me more, says मुजना। मुजना जो है एक्साइटेडली उस पिक्चर को देखती है और अपने दादू से बोलती है, वाव, आप मुझे और भी इस वेल के बारे में बताइए। Well, there are many kinds
उसके दादू से बताते हैं कि बहुत टाइप की वेल्स होती हैं, बट द साइज ऑफ दिस क्लाउड makes me think of a blue whale. वेल बहुत सारे टाइप की होती हैं, पर इस क्लाउड कौन सी शेप का था? क्लाउड शेप का था, वेल शेप का था। वेल्स बहुत सारे टाइप की होती हैं, पर इस क्लाउड को देख के वो कहते हैं कि मुझे किसकी याद आ गई? ब्लू वेल। ब्लू वेल की याद आ गई। The blue whale is the biggest animal that has ever lived on earth. उन्होंने क्या बोला? जो ब्लू वेल थी वो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी एनिमल थी जो इस पृथ्वी पर है। कौन है? ब्लू वेल। The blue whale is the biggest animal that has ever lived on earth. उन्होंने क्या कहा? आज पृथ्वी पर अगर कोई सबसे बड़ा एनिमल है तो वो कौन है? ब्लू वेल। मच बिगर देन अ डायनासोर। वो जो ब्लू वेल है वो डायनासोर से भी बड़ी होती है। एंड मस्ट बिगर देन एन एलिफेंट सेज दादू। और वो एलिफेंट एलिफेंट और डायनासोर इन सब से भी बहुत बड़ी होती है। सो बिग सेज मुजना। उसने कहा इतनी बड़ी। देखो आप कंपैरिजन देख सकते हो, ये है ब्लू वेल, ये है डायनासोर और ये है एलिफेंट। एलिफेंट की कंपैरिजन में ब्लू वेल कितनी बड़ी है, इवन डायनासोर से भी बड़ी थी वो ब्लू वेल। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज 107. So it is so big that you would be able to sit inside its heart. Oh God, देखो कितना बड़ा होता है वेल फिश कि उसके दादू क्या बोलते हैं, वो इतना बड़ी होती है कि you can sit inside in his heart. आप वेल के हार्ट के अंदर बैठ सकती हो। इतनी बड़ी वो वेल होती है कि उसका हार्ट ही इतना बड़ा होता है कि यू कैन सिट इनसाइड हर हार्ट। देखो आप ये पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ हार्ट एंड शी इज इमेजिन दैट ही इज सिटिंग इनसाइड द हार्ट ऑफ वेल। एक्सप्लेन दादू उसको एक्सप्लेन करने के लिए समझाते हैं कि वेल जो है वो इतनी बड़ी होती है कि उसका हार्ट में तुम आराम से जाके बैठ सकती हो। Your dog nose is floating away, laughs Dadu. Maybe the nose doesn't like the dog anymore. और जब वो आसमान में देखते हैं तो वो जो डॉग शेप बन रहा था उसमें से वो नोज वाला जो बादल था वो अलग हो जाता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। मुजना giggles. Oh, it's floating towards the whale cloud. Giggle मतलब हंसना, खिलखिलाकर हंसना, जिसे उसको हम क्या बोलते हैं? giggles. तो मुंजा क्या करती है? हंसती हुई कहती है it's floating towards the whale cloud. What will the whale do with a nose? What will the whale do with a nose? Fish needs gill, not a nose, to breathe underwater. और वो अपने दादू को बोलती है अब ये जो बादल नोज का उड़ के वेल के पास चला गया है तो वेल इस नोज का क्या करेगी, क्योंकि
नीड्स अ वेल। फिश जो होती है उन्हें सांस लेने के लिए गिल्स की जरूरत होती है, नॉट अ नोज ब्रीथ अंडर वाटर। उनको नोज की जरूरत नहीं होती है। That's a true for a fish, but the blue whale is not a fish. उसके दादू क्या बोलते हैं, एकदम सही बात है कि फिशेस को नोज की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके पास गिल्स होते हैं जिनकी वजह से वो अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर भी आराम से रह सकती हैं। बट ब्लू व्हेल इज नॉट अ फिश। पर जो ब्लू व्हेल है वो फिश नहीं है। इट ब्रीथ्स एयर एंड सो इट हैज नोज, सेज दादू। वो क्या बोलते हैं उसके दादू कि जो व्हेल है उसको वो ब्रीथ करती है, इसीलिए उसको नोज होता है। It must have the biggest nose in the world. How does it breathe air if it lives underwater? उसके दादू बोलते हैं it must have the biggest nose in the world. मुंजा क्या बोलती है अपने दादू को, अच्छा तो फिर अगर व्हेल इतनी बड़ी है तो उसका नोज भी जो है बहुत बड़ा होगा। आई थिंक द बिगेस्ट नोज इन द वर्ल्ड। हाउ डज इट ब्रीथ एयर इफ इट लिव्स अंडर वाटर? वो अपने दादू से क्वेश्चन करती है कि अगर वो अंडर वाटर रहती है व्हेल तो फिर वो ब्रीथ कैसे करती है? सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पे रुकते हैं। आगे के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। तब तक आप ये जहाँ तक आज टीचर ने पढ़ाया है वो पूरा रीड करने की कोशिश करिएगा। एंड इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी जस्ट कॉन्टैक्ट मी। टिल देन टेक केयर ऑफ यू एंड थैंक यू।